نبی پاک کا چرچا بلند ہو رہا ہے، کون سی مارکیٹ ہے، کون سا محلہ ہے، کون سی مسجد ہے، عاشقان رسول جہاں موجود ہیں وہ نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی آمد میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو خوشیاں عطا فرمائے جو نبی پاک کی آمد میں خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ ان سب کے غموں کو دور فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ اب کتنا چھوٹا سا کام ہے، 10 بار درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور انعام کتنا بڑا ہے۔ دنیا کا دستور یہ کہ کام زیادہ کرو تو مزدوری زیادہ ملتی ہے، کام تھوڑا کرو تو مزدوری بھی تھوڑی ملتی ہے، مگر میرے رب کی رحمت کے اصول نرالے ہیں۔ میرے رب کی رحمت چاہتی ہے کہ بندہ چاہے تھوڑا کام کرے مگر اس کی بخشش کر دی جائے۔ دیکھیں نا، ذکر اور اذکار کی جو زبان سے نیکیاں کرنے کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا آسان معاملہ ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ ہم اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا، ہمارا کوئی ٹائم بھی نہیں لگا۔ میرا خیال ہے مشکل سے 30 سیکنڈ لگے، مگر ان 30 سیکنڈ میں آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا ارن کر لیا ہے، آپ نے کیا کما لیا ہے۔ اس وقت ہم سب مل کر بھی اپنے پاس جتنی بھی رقم ہے، پیسے ہیں، ویلتھ ہے، سب شامل کر لیں، مگر پھر بھی ہم جنت میں درخت نہیں خرید سکتے۔ Nobody have power to buy tree in heaven۔ ٹھیک ہے نا، ہم پیسے جمع کر کے ڈیفینس میں پلاٹ تو خرید سکتے ہیں، اسلام آباد میں کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، لندن میں کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، مگر پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جنت کی پراپرٹی خریدے۔ مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو درود پاک ہو، ذکر اللہ ہو، یہ بڑا کمال کا کام ہے، اور بغیر ایفرٹ، بس آپ بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں، چلتے چلتے پڑھتے رہیں اور نیکیاں کماتے رہیں۔ مگر پھر بھی شیطان یہ آسان نیکی ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ وہ موبائل ہاتھ میں ہے تو گھنٹوں نکل جائیں گے، دوستوں میں گپ شپ میں گھنٹوں نکل جائیں گے، لیکن زبان پر ذکر و درود آنے نہیں دیتا۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں نا، اب تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، صبح سے لے کر شام تک کتنے درود پڑھے آپ؟ اپنے آپ سے پوچھتا رہے انسان۔ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے 100 بار کلمہ پاک پڑھا ہو؟ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے ایک پوری تسبیح جو ہے اللہ کے ذکر کی؟ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ نماز، چلے وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر میں چوٹ کرنے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا دنیاوی مثال دے کے بات سمجھ زیادہ جلدی آ جاتی ہے، کہ اگر آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ بھائی 3 دن کی اسکیم ہے، جو جتنے درود پاک پڑھے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ اب سچ بتائیں کتنے پڑھ لیں گے؟ بندہ کہے گا موبائل بھی بند، جاب سے بھی چھٹی، 3 دن میں کم از کم 1,00,000 درود پاک پڑھ لینے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں پہ بن جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ یار، دنیا کے پیسے کی کوئی ویلیو ہے جنت کی نعمتوں کے آگے، رب کی رحمتوں کے آگے؟ تو پلیز یہ زندگی کو غنیمت جانیں، ان سانسوں کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہو سکے اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ کمال کی ذات ہے، جس کی ہر ڈائمنشن، جس کا ہر پہلو ہی نرالا ہے۔ اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب کو، ایسا با کمال بنایا کہ نہ اس سے پہلے ایسا بنایا نہ اس کے بعد ایسا بنایا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ دید میرے نبی کی دید ایکچولی جو کہا گیا رب کا نظارہ، اللہ کی قدرت کا نظارہ۔ جب کسی تصویر کو بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کا مصور کیسا ہوگا، اس کو بنانے والا کیسا ہوگا۔ جب حبیب کی شان دیکھتے ہیں تو بندہ سوچ رہا ہے اس حبیب کو بنانے والا رب کیسا ہوگا۔
अल्लाह की कुदरत का मज़हर है नबी पाक, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। आप नबी पाक की जिंदगी का कोई भी पहलू उठा लें, वो हर पहलू में बाकमाल है। ऐब तो दूर की बात है, गुमाने नक्स भी वहां पर नहीं है। इमेजिनेशन भी कोई नहीं कर सकता कि नबी पाक जो है उसमें माद अल्लाह किसी किस्म का कोई ऐब होगा। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, नक्स तो दूर की बात है, गुमाने नक्स भी नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या प्यारी एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि दुनिया में बहुत सारी नेमतें हैं, मगर हर नेमत के साथ कोई ना कोई आजमाइश भी होती है। अब मिसाल के तौर पर फूल, गुलाब बहुत अच्छा लगता है, मगर साथ कांटा मजा नहीं देता। कांटा होता है ना गुलाब के फूल के साथ जो कली होगी उसमें कांटा भी होता है। शमा बहुत प्यारी खूबसूरत लगती है, कैंडल जब जलती है तो माहौल अच्छा बना देती है, मगर उसमें से धुआं निकलता है, वो मजा नहीं देता। सैयदी आला हज़रत समझा रहे हैं कि यही फूल खार से दूर है। आका फूल तो है मगर कांटा कोई नहीं है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं, ये शम्मा तो है मगर धुआं नहीं। तो सुभान अल्लाह, नबी पाक के तमाम ही मामलात बड़े शानदार, मगर आज जिस जिंदगी के पहलू पर मैंने चंद मदनी फूल पेश करने हैं, वो हमारी इस लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक है हम जश्न विलादत मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मकसद विलादत भी हमें पता होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा किस लिए गया? खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, यानी मुझे अखलाक के हुस्न खूबी को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। आए हाय, कैसा इखलाक था कि कुरान फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक की कुरान मिसाल दे रहा है, और गोया हमें रोल मॉडल बताया जा रहा है कि लाइफ गुजारनी है तो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के तरीके पर गुजारनी है। नबी पाक ने कारोबार भी किया, आका ने शादी भी फरमाई, आपकी फैमिली भी थी, सिर्फ पहाड़ों में या गारों में जिंदगी नहीं गुजारी, यानी जिंदगी के वो सारे काम किए जो मैं और आप कर रहे हैं। आपके यहाँ औलाद भी हुई, आपने अपने बच्चों की शादी भी की, आपने ट्रैवल भी किया, आपके दोस्त भी थे, आपके साथी भी थे, आप लीड भी कर रहे थे, आप जनाब कमांड भी कर रहे थे, आपने जिहाद भी किया, आपने दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात भी बनाए। अल्लाह अकबर, ये तमाम काम हमारे लिए रहनुमाई हैं। अगर कोई बाप चाहता है मैं बेहतरीन बाप बन जाऊं, वो नबी पाक की सीरत को पढ़े। अगर कोई दोस्त चाहता है कि मैं बेहतरीन दोस्त बन जाऊं, वो नबी पाक की सहाबा के साथ जो एटीट्यूड था उसको समझे। अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अच्छी तिजारत करूं, वो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की तिजारत को देखे। अल्लाह अकबर, जिंदगी का कौन सा पहलू है जो हमारे लिए रहनुमाई नहीं रखता? मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूं जो आज हमारी जिंदगी में बड़ा फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, और जनाब बड़ा जिसको कहें कि कोई टॉलरेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा रेडी टू फाइट है, ना किसी में सब्र है, ना कोई किसी से प्यारी और मोहब्बत वाली बात करने के लिए तैयार है। आओ मैं बताता हूं, जिस नबी का मिलाद मनाने आए हो, उस नबी का अखलाक कैसा था, मेरे आका का अंदाज कैसा था। मामला कुछ यूं था, एक शख्स थे जो यहूदियों के उस जमाने में आलिम थे, ज़ैद बिन साना। बाद में ये मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में तो सहाबी बन गए, यहूदी आलिम थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ खजूरें उन्होंने खरीदी, और खजूरें देने की मुद्दत में अभी 2 या 3 दिन बाकी थे। बिजनेस डील थी और टाइम तय हो गया कि इतने दिनों बाद नबी पाक उन्हें खजूरें दे देंगे। अभी 2-3 दिन बाकी थे कमिटमेंट पूरा होने में। तो उन्होंने मस्जिद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की चादर को पकड़ा पब्लिक के सामने, और बड़ी तेज नजरों के साथ, बड़ी बुलंद आवाज के साथ कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो, और टाल मटोल करना ये तुम लोगों की आदत बन चुकी है। प्यारे आका से इस तरह बात, सहाबा मौजूद हैं, मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल है। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जलाल, आपकी नबी पाक से मोहब्बत पर आप तो खड़े हो गए ना कि नबी पाक से ये कौन इस तरह बात कर रहा है। बड़ी तेज नजरों से आपने उन्हें घूरा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, अगर नबी पाक का अदब ना होता अभी तलवार से तेरे सर को कलम कर देता। अल्लाह अकबर, अब नबी पाक का एटीट्यूड क्या है जरा तसव्वुर करो। मैं कहीं या आप कहीं जा रहे हो, हमारे 4-5 दोस्त या हमारे बॉडीगार्ड हमारे साथ हों, और कोई हमारे साथ बदतमीजी करे। अब हम क्या करते हैं कि जनाब इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इसको तो सीधा सबक सिखाना है। नबी ये पाक के साथ उमर फारूक भी हैं, दीगर सहाबा भी हैं, मस्जिद भी आप ही की है, ये बंदा भी गैर मुसलमान था,
मगर नबी पाक ने क्या किया ये समझो। आका अलैहिस्सलाम ने उमर से कहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से, ए उमर तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे अदाए हक की तरगीब देते, मुझे ये कहते कि हुजूर इसकी खजूरें दे दे और इसको नरमी के साथ बात करने का समझाते कि तुम नरमी से बात करो, और नबी पाक फरमाते तुम मुझे कहते कि प्यारे आका आप उसका हक अदा कर दें। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक ने हजरत उमर से क्या कहा कि इसको इसके हक के बराबर खजूरें दे दो और थोड़ी खजूरें ज्यादा भी दे दो। हजरत उमर कहते हैं एक तो बदतमीजी की, अच्छा ठीक है अब इसकी जितनी खजूरें निकलती उतनी देना, एक्स्ट्रा किस चीज की देनी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चूंकि तुमने टेढ़ी, अच्छा अब नबी पाक ने इनकी तरबियत तो फरमा दी कि इसलिए देनी है कि तुमने उसको बड़ी टेढ़ी नजरों से देखा था, गुस्से से देखा था, उसका दिल टूट गया होगा, थोड़ी खजूरें ज्यादा दे दो ताकि उसका दिल जो है वो तुमसे बहल जाए, उसका दिल साफ हो जाए। हजरत उमर उसके पास जाकर खजूरें लेकर गए। अच्छा यहाँ एक बड़ी बारीक सी बात है, नबी पाक खुद भी खजूरें दे सकते थे, किसी और के जरिए भी भिजा सकते थे, मगर सहाबा की तरबियत का अंदाज क्या है कि जिस सहाबी को ज्यादा जलाल आया उसी सहाबी के जरिए खजूरें भिजवाई और कहा थोड़ी ज्यादा भी दो ताकि तरबियत हो जाए। हजरत उमर जाते हैं, ज़ैद बिन साना से कहते हैं तुम्हारी खजूरें ले लो और ये तुम्हारे लिए कुछ और खजूरें भी नबी पाक ने भिजवाई हैं। कहते ज्यादा क्यों भिजवाई हैं? कहा मेरे आका ने फरमाया मैंने तुमको बड़े गुस्से से देखा था, तुम्हारे सामने मेरी आवाज बुलंद हो गई थी, तुम्हारी दिल जोई के लिए कुछ खजूरें ज्यादा भिजवाई हैं। अल्लाह अकबर। अब ज़ैद बिन साना ने क्या कहा, उमर तो मुझे पहचानते हो कौन हो? कौन हो? कहा मैं ज़ैद बिन साना हूं। कहा तुम वही हो जो यहूदियों के बहुत बड़ा आलिम है? कहा मैं वही हूं। कहा तुम्हें तमीज नहीं है कि अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? इतनी तुमने बुलंद आवाज से बात की, इतना मिस एटीट्यूड तुमने किया। अब सुनो ज़ैद बिन साना क्या कहता है। वो कहते हैं बात यह है कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनमें दो निशानियां होंगी, एक तो ये उनकी नरमी गुस्से पर गालिब रहेगी और दूसरी ये कि जितनी जहालत का बर्ताव किया जाएगा उतना हिल्म और मुर्दबारी उनका बढ़ता चला जाएगा। ऐ उमर मुझे टेस्ट लेना था, मुझे पता था कि बड़ों से इस तरह बात नहीं की जाती, मगर मुझे चेक करना था कि जो हमारी आसमानी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां हैं ये निशानियां इनमें मौजूद हैं कि नहीं। ऐ उमर मैंने पहचान लिया है ये अल्लाह के आखिरी नबी, ये सच्चे नबी हैं। उमर सुनो मैं बहुत मालदार आदमी हूं और मैंने अपना आधा माल नबी पाक के कदमों में कुर्बान कर दिया, इस्लाम के लिए वक्फ करता हूं और मैं कलमा पढ़ता हूं और गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। ये एक वाकया काश हमें समझ आ जाए। देखिए जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। अरे इसने मेरे सामने बदतमीजी की, अब मैं इसको बताता हूं मैं कौन हूं। इसने एक गाली दी मैं इसको 7 गालियां दूंगा, इसने बदतमीजी की अब इसकी औकात याद दिलाऊंगा। ये इस्लाम नहीं है। नबी पाक और सहाबा यहां बदला लेते तो क्या ज़ैद बिन साना मुसलमान होते? ऑलवेज आप माफ करके दोस्त बना सकते हैं, आप बदला लेके दोस्त नहीं बना सकते। बहुत थोड़ी लाइफ है, 50, 60, 70 साल रहना है। अगर इसमें भी लड़ाइयां ही करते रहे, दुश्मन बनाते रहे तो जिंदगी का लुत्फ क्या रहेगा? अरे माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो, दोस्त बनाया करो। लाइफ थोड़ी है, लाइफ एंजॉय करो। लेकिन आज हाल यह है फला भाई से बात नहीं है, फला बिजनेसमैन से मेरी बात बंद है, उस रिश्तेदार के घर में नहीं जाता, नहीं मैं उसकी दावत में नहीं जाऊंगा। अरे जिंदगी को शॉर्ट क्यों करते जा रहे हो? अपने मामलात को क्यों कम करते जा रहे हो? आका का ये तरीका नहीं था। अच्छा नाक हम सब पढ़ते हैं, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कमाएं दी। आका तो जानी दुश्मन को माफ कर देते, हम जनाब एक गलती किसी की माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आराम कर रहे थे, एक दुश्मन गैर मुस्लिम मादअल्लाह नबी पाक पर मादअल्लाह कातिलाना हमला करने के लिए तलवार लेकर आ गया। कोई गार्ड नहीं, नबी पाक के साथ कोई उस वक्त सहाबी भी नहीं था, हाथ में तलवार, नाम था उसका गौरस। नबी पाक के सामने आके खड़ा हो गया, प्यारे आका की मुबारक आंखें खुली। गौरस बड़े बड़े तकब्बुर में कहता है ऐ मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्योंकि कोई नहीं था, हाथ में उसके तलवार है। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने एक ही लफ्ज कहा अल्लाह। अदा किसकी जबान से हुआ था? अल्लाह के हबीब की जबान से। नाम किसका कहा? अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये लफ्ज की ऐसी हैबत तारी हुई गौरस पर कि वो लरसने लगा, उसके हाथ से तलवार गिर गई। अब नबी पाक ने तलवार उठाई, कहा गौरस अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे?
अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब जरा सोचो, जो बंदा मारने आया है अब आपके हाथ में तलवार आ गई है, तो कहता है आप तो करीब बाप के करीब बैठे हैं, आप तो माफ करने वाले हैं, गलती हो गई मुझे माफ कर दें। नबी ये पाक ने उसे माफ किया। अपनी कौम में जाकर कहता है ऐसी शख्सियत से मिलकर आया हूं जो खून के प्यासों को माफ कर देते हैं, कलमा पढ़कर गौरव से मुसलमान हो गए। इस्लाम की तारीख भरी हुई है। Whenever you see इस्लाम के ये मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, नहीं जनाब, इस्लाम जो है वो माफी से फैला, दरगुजर से फैला, इस्लाम मोहब्बतों से फैला है। फतेह मक्का क्या था? आपने कभी इसको अगर स्टडी करें ना, अल्लाह अकबर, पहले तो जरा मक्के वालों का जुल्म याद करो कि नबी ये पाक की राह में कांटे बिछाए जाते, प्यारे आका पर पत्थर इन लोगों ने बरसाए, सहाबा इकराम को शहीद किया, नबी ये पाक के सहाबा को तपती रेतों पर लिटाया, कई सहाबा को जख्मी कर दिया, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि नबी ये पाक को मक्का छोड़ना पड़ा। कभी सोचो कराची में जो रहते हैं, जिनकी पैदाइश कराची की है, आपकी उम्र 50 साल हो जाए, आपके बच्चे यहाँ हो, बच्चों के बच्चे यहाँ हो, आपका कारोबार यहाँ हो, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ हो, और एक वक्त ऐसा आए कि आपके साथ इतना जुल्म हो कि आपको सब छोड़ के जाना पड़े, कितना दुख होगा। नबी, और फिर काबा भी वहां हो, मक्का भी वहां हो। नबी पाक जब मक्के से गए थे ना मदीने, बड़े अफसोसदा थे, और आपने एक घाटी पर खड़े होकर काबे की तरफ इशारा करके कहा था, ऐ काबा अगर मुझे मक्के वाले ना निकालते तो मैं कभी तुझे छोड़ के ना जाता। बड़े गमज़दा दिल के साथ। और फिर वो सफर भी कितना खौफनाक, और कितना यूं समझिए कि दुश्मनों का खौफ था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक को लेकर अकेले ट्रैवल किया था नबी पाक ने, गारे सौर में 3 दिन 3 रातें गुजारी, और रास्ता बदल के नबी पाक जो है वो मदीने पहुंचे थे। मगर सिर्फ 8 साल के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को वो ताकत दी कि वही आका अलैहिस्सलाम जो अपने सहाबा को पहले खामोशी से मदीने पहुंचने की आपने तलकीन की थी, अब 10,000 का लश्कर लेकर मक्के आ रहे हैं, और सुभान अल्लाह बगैर जंग के मक्का फतह हो गया। अब सारे दुश्मन सामने खड़े थे जिन्होंने सहाबा को शहीद किया था, नबी पाक के बच्चों को रुलाया था, खुद नबी पाक के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही थी और मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। वो सारे समझते थे कि आज हमारी बोटी बोटी कर दी जाएगी, मगर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ कि आज तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला, तो सब और कांपने लगे कि आज तो गए सबके सर कलम होंगे। मगर बड़े लरसते हुए उन मक्के वालों ने कहा था, हम आप तो बड़े करम वाले हैं, आप तो बड़े करीम हैं, आप तो माफ करने वाले हैं। नबी पाक ने जवाब दिया, आका ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौमा फदहबू अंतुमुत तुलका, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सारे के सारे आजाद हो। आप माफी दे दी। अच्छा, यहां तक वाकया सबने सुना है। इस वाकये के बाद टर्न आउट क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, जरा समझिएगा। लॉजिकली एक बात समझाना चाहता हूं। मक्का फतह हुआ है 8 हिजरी में, ठीक है। कितने मुसलमान थे? 10,000 मुसलमान मदीने से लश्कर के तौर पर आए थे। कुछ औरतें मदीने में होंगी, वहां भी 10,000 आप काउंट कर लो, तो ऑल टुगेदर इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड 20-25 हजार से ज्यादा मुसलमान नहीं हैं। मगर इधर माफी का ऐलान हुआ, वो ज़ारो कितार रोने लगे। उनको ख्याल ही नहीं था कि हम माफ किए जाएंगे। हमने तो इनके बच्चों को, इनके सहाबा को शहीद किया, हमने इनकी औरतों के साथ बदतमीजी की, हमने इनके साथ बड़ा जुल्म किया, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, ये आज हमें कैसे छोड़ेंगे। मगर जब नबी पाक ने माफ किया ना, तो अहले मक्का ज़ारो कितार रोने लगे और हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आया? हुज्जतुल विदा कब हुआ है? देखो, मैं आपको चले छोटी सी इस्लाम की हिस्ट्री समझो। इस्लाम किस ग्रेजुअली अंदाज से आगे बढ़ा है। इस्लाम जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने गए ना, तो तकरीबन 70-80 सहाबा हिजरत करके गए थे। वहां पहले से कुछ सहाबा मौजूद थे। 2 हिजरी में गज़वाए बदर होता है। कितने सहाबा थे? सबको बदर वालों की तादाद याद होगी, 313 याद है। 2 हिजरी हिजरत करके गए और आफ्टर 2 इयर्स ओनली, और उस वक्त नबी पाक ने बदर के मैदान में एक जुमला कहा था, दुआ करते हुए कि या अल्लाह, अगर आज ये मारे गए तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसका मतलब पूरी दुनिया में 313 सहाबा बदर में थे, कुछ खवातीन होंगी, ऑल टुगेदर मोटा हिसाब कर लो 600-700 लोग दुनिया में मुसलमान थे। हिजरी कौन सी है? 2। 3 हिजरी में होता है गज़वा उहद, वहां 700 मुसलमान उहद के मैदान में हैं। 300 से तादाद कहां पहुंची? 700 तक।